Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. So now see the question. First, I am going to ask this. Okay, how many DFAs? How many DFA exists with n states over n input? तो इस क्वेश्चन का आप लोग को क्या मिला आंसर? व्हाट यू गॉट द आंसर? हाउ मेनी डीएफएस एग्जिस्ट विद n स्टेट एंड m इनपुट अल्फाबेट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक पीएसयू का क्वेश्चन है, शायद इसरो या किसी एक का है। ट्राई करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल कंटिन्यू। इट्स सेइंग दैट हाउ मेनी डीएफएस एग्जिस्ट विद n इनपुट अल्फाबेट एंड n state and m input alphabet. So you are having n state, so you write states here. You write the states here. So since you are having n states, you will write from here q0, then q1, then q2. So you can even start from q1 also. So let me start from q1, it will be easy, till qn. So you are having n state, so from q1 to qn. Now you are having input alphabet, m input alphabet. So it will have from 1, 2, 3, 4 till m. So you are having m input alphabet. Now you know that since here it is asking in case of DFAs, how many DFA exist with n state over m input alphabet. Okay, in case of DFA. Now tell me this state. Now since it is a DFA, from one state by getting one input alphabet, it can go to any one of these state. Okay, it can go to any one of these state. So Q1 by getting 1, it can go to either Q1 or Q2 or Q3. So how many options we are having? Q1 is having how many options by getting 1? Tell me. Q1 by getting 1, how many options it is having? How many states it can go? It can go to Q1, it can go to Q2, it can even go to Q3. Any one state it will go, but it can go to any one of that. So how many options we are having? Q1 by getting? बताइए। Having n options when q1 by getting 1, it can go n state. Q1 by getting 2, it can have n options. Okay, n options. Here also we are having n options. Here also we are having n option. See, every state by getting some input alphabet, it can go to any one of these state, and it is having n options. Okay, it is having n options. It is having n options. Now, how many this spaces means how many boxes are there, you can say, means here you are having how many, 1 2 3 means m, then m means I'm not saying n. Okay, means I am saying that here total number, just like in array total number of element, how we find row, if it is having n rows and m column, then we do n into m. Similarly, if we consider that how many elements are there, how many elements are here inside that, how many elements are there, this total I am asking, how many total, not m. See, if you consider it as a, if you consider it as a array or matrix, okay, consider it as a matrix which is having n rows, which is having n rows, 1 2 3 n, and column is having from 1 2 3 4 till m. Now I am asking how many elements are there inside that, how many, it is same like how many elements are there inside that, बताइए कितने elements हैं, into m.
So we are having total n into m elements here. Okay. So yeah, correct. Now see, now we will go to the question. This we have understood the delta. Delta can be like this. Now we have to construct a DFA over n state and m input alphabet. Now initial state can be any state from anyone from Q0, Q1, Q2, Qn. The initial state can be anything. Now how many options we are having for initial state? Initial state will be only one state, but either Q1 can be the initial state, either Q2 can be the initial state, either Q3. So till we are having Qn. So we are having total n state. So out of that anyone can be the initial state. So we are having total n options for initial state. N options. Yeah, correct. Now, see, to construct in a DFA, we are having only three things. One is initial state, another is delta, and another is the final state. The initial state, we find out that it is going to be n. Now we have to find the delta. So if you'll see, now if you'll see the delta means this one. How many options we are having in case of deltas? What are the possible combinations? So we have seen that every state, by getting any input alphabet, it is having n options, like that. Now total is in total combinations. How many we can get? N into till up to n into nn, because total we are having nm elements we can put here, because total spaces we are having nm. So in every spaces we are having, in every possibilities we are having n options, means n possibilities we are having, and total we are having n into m. So it will be, see, 2 into 2 up to 3 times it is going to 2 to the 3, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 4 times it is 2 to the 4. Now n into up to n to the m times, then what will be the delta? Number of possibilities of delta. How many possible delta you can get with n state and m input alphabet? How many deltas you can get with n state and m input alphabet? आप खुद देखिए, हर, जैसे आप ऐसे मान लीजिए that you are having this space can have n element, this space can have n element, this space can have n element, this space can have n element. अगर मैं बोलूँ कि ये अप टू n टाइम्स nm टाइम्स स्पेसेस है, nm टाइम्स, ओके, nm टाइम्स आप जा रहे हैं, तो क्या होगा? n टू द पावर nm ना, n टू द पावर nm. देखिए यहाँ गलती हो रहा था, क्योंकि जब हमने 2 के लिए किया था, याद कीजिए, लेंथ 2 के लिए कितने ओवर a, b, लेंथ 2 के लिए जैसे आपके पास सिग्मा ए बी था, 2 ऑप्शन, लेंथ n के लिए किए थे हम लोग, तो क्या हो गया? 2 इंटू अप टू n टाइम्स, तो हो गया 2 टू द पावर n. तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कितना टाइम्स? nm टाइम्स, बिकॉज हमारे पास टोटल एलिमेंट यहाँ कितने हैं? nm एलिमेंट है, और सब एलिमेंट में हमें कितने ऑप्शंस मिले? n ऑप्शंस. तो n इंटू nm टाइम्स हो जाएंगे. हमें पता चल गया कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, n इंटू n to the power nm. So we are having total n options for initial state, and 2 to the power nm option, sorry, not 2 to the power, n to the power nm options. तो देखिए हम इंटू कर रहे हैं, क्योंकि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसके साथ इतना ये हो सकता है, तो ये मैं इंटू कर रहा है, n to the power nm, ओके, n to the power nm, ठीक है. अब फाइनल स्टेट के कितने पॉसिबल कौन? देखिए हम सारे को इनटू कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, व्हाई वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन? बिकॉज वी वांट टोटल permutation, we want whatever total permutation we are going to get, total combinations that we are going to get, means that all the combinations we are taking, that if this is the final, if this is the initial state, then this all the deltas can be possible, okay. So all things we are going to take care. Now how many final state can be possible? And you know that F is a set of final state, so we can have more than one final state.
it is a set of final state. So if n is your number of element, how many set you can get, means it is going to be set power set of n. Okay, because power set of n is going to contain set of all subset of n, it is going to be 2 to the power n. So 2 to the power n are the possible combinations we can have the final, because one can have q0 as only q1 as the final state, another q2 can be the final state, only one, then one can be q1 q2 be the final state, like q1 2 3. So it is going to be the set of all subset of the n are going to be the number of final state we can get. Okay, so with n we are going to get how many possibilities are there of a final state is 2 to the power n. So we will write here 2 to the power n. So total number of, this is the total number of DFA we can get with n state and m input alphabet. We can multiply with, okay, so this is the total number of DFA you can get with that. Total number of, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अगर पहले से नहीं किए रहेंगे तो नहीं होगा, ये वैसा ही क्वेश्चन है। ये जो स्टूडेंट पहले से नहीं किया रहेगा वो एग्जाम में नहीं कर पाए, इतना टाइम नहीं रहता है हमें सोचने के लिए, ठीक है। गेट एग्जामिनर अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे ना कि कोई बच्चे आंसर ना कर पाए, इवन फैकल्टीज ना आंसर दे पाए, तो बना देंगे, ठीक है। वो IITs के प्रोफेसर्स क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ये कभी मत सोचिएगा कि मैं अगर TOC पूरा पढ़ लिया हूँ तो मैं पूरा ही कर ही लूँगा। अगर वो चाहे, देखिए हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ कि आप एटलीस्ट 80% कर दे, लेकिन अगर वो पेपर एकदम टफ बना दिए, एकदम टफ बना दिए कि कोई मतलब देखते हैं ना कभी कभी, एक बार कौन सा ईयर में था पता नहीं, 60 मार्क्स ही टॉपर का मार्क्स आया था। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत टफ था। लेकिन पेपर टफ रहने से एक चीज अच्छा होता है, कंपटीशन कम हो जाता है, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। क्योंकि देखिए जो सिर्फ पढ़े रहते हैं ना बच्चे, जो पढ़ाई करके जाते हैं वही आंसर दे पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चंस अगर आएगा तो जो क्लास अटेंड कर रहा है या फिर जो कहीं इधर उधर से पढ़ा, मतलब जो ये क्वेश्चन को जानता है वही ये कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ कंपटीशन क्या होता है ना, अपने आप कम हो जाता है। तो क्वेश्चन टफ आने से बहुत अच्छा है, बहुत एडवांटेज है, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसी को फायदा होगा, अदरवाइज ये। अब देखिए अब क्वेश्चंस इजी हम पूछेंगे तो जो कॉलेज में भी सिर्फ पढ़ रहे हैं वो भी दे पाएंगे, और जो कोचिंग या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं अच्छे से वो भी कर पाएंगे। तो वो क्या हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। अभी तो लेकिन एग्जाम का पेपर 2 साल से इजी आ रहा है, क्योंकि अब कट ऑफ देखिए बढ़ जा रहा है। पहले तो 2-3 साल से 25 ही कट ऑफ रहता था, मतलब 3 साल पहले। ये 19 से या 20 से शायद पेपर टफ होना, इजी होना शुरू हो गया कंपेयर टू, क्योंकि कट ऑफ देखिए अब बढ़ जा रहा है। पहले 25 ही कट ऑफ रहता था, ठीक है। तो ये भी IITs वाले अच्छे जानते हैं, तो ये सब में आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए मैं अब इसका नोट्स लिखा देता हूँ आप सभी को, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अगर बाद में जब आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। आप बनाए ही थे, उसके बाद आप लिखिए। here we have n into m, that is nm spaces, and in every spaces, क्योंकि जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो थर्ड ईयर में है, अब वो जब फिर एग्जाम देने जाएंगे तो वो 1 साल के बाद दे रहे हैं, तो उनको तो याद ही नहीं रहेगा अभी क्या पढ़े हैं। नोट्स बहुत जरूरी होता है। हमारे एक फैकल्टी थे, वो हमें बोलते थे कि अगर नोट्स अच्छा से नहीं रहेगा या फिर अगर लिख के नहीं रखोगे ये कैसे हुआ, तो लगेगा कि जादू है। एंड इन एवरी स्पेस, we have n choices. In every spaces we have n choices. We can either put Q0 और Q1 ही से कर देता हूँ, क्यों हमने Q1 से शुरू किया। either put Q1 Q2, ये सर लगता भी है जादू कभी कभी Q1 Q2 Q3। देखिए गेट इतना भी इजी नहीं है, लोग कहते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा से पढ़ाई करना होगा तभी गेट में अच्छा रैंक आता है। क्योंकि आज गेट अगर आप एमटेक कहीं नॉर्मल कॉलेज से करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सभी तो इंजीनियर है,
तो वो तो कुछ होने वाला नहीं है उतना अच्छा, इसीलिए गेट का थोड़ा ये सब चीज़ें रहती है। गेट में रैंक अच्छा है, कम से कम एक अच्छा स्कोर आया, मतलब 60 अब कब कम आए ना। कुछ 10-12 कॉलेजेस है उसमें एडमिशन है तो ही अच्छी पैकेज मिलेगी। ऐसे भी मिलते हैं लोग, मतलब वो हार्ड पाथ थोड़ा हार्ड हो जाता है वो सब। सो वी गेट n into up to nm times we are having into the power, okay. Input set is given, we so we have three parts DFA. So we have three parts in DFA which we can change. We have three parts in DFA which we can change. Okay, so हमारे पास तीन पार्ट्स है जो हम चेंज कर सकते हैं। पहला क्या है, इनिशियल स्टेट। दूसरा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। आप वहाँ क्लियर कर लीजिएगा, इनिशियल स्टेट, ट्रांजिशन फंक्शन, फाइनल स्टेट। ठीक है, चेंज करें, लिख लिए आप लोग। सो इनपुट स्टेट इज गिवन, सो वी हैव थ्री पार्ट्स इन DFA, वी कैन चेंज। So with these three we are going to have, अभी इससे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इनिशियल स्टेट कैन बी chosen as as any one among, आपको बताना है, ठीक है, मैं फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दूंगा। एनी वन अमाउंट एन स्टेट, मैं बोल ही दिया, एन स्टेट्स इन, तो इनिशियल स्टेट कैन बी chosen as any one among n state in how many ways। एक तो मैं भर दिया, n states है। if we are having n states, okay, q1 q2 q3 like this, so we can have any one of this as the initial state। हमें तो कोई भी state initial state हो सकता है ना, we can choose any one among them, so we are having n options, transition function is from q cross sigma goes to q, where q is the state of states। थोड़ा फास्ट लिखिएगा आप लोग, where q is state of states and sigma is the alphabet, state, ठीक है, सिग्मा अल्फाबेट स्टेट है। सो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स n है और नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट m है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन फंक्शन इज, बताइए क्या होगा, मैं बताया हूँ अभी, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन फंक्शन होंगे, दैट इज n to the power m। ठीक है, हर स्पेसेस में हमारे पास n ऑप्शंस है, तो टोटल कितने स्पेसेस यहाँ, n इंटू m, सो n to the power nm होगा। फाइन, सो नाउ वी विल गो फॉर फाइनल स्टेट। देखिए इसका मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, इस टाइप के और एक क्वेश्चन है उसमें मैं नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, आप लोग सेम लिख लीजिएगा, हमारा टाइम बचेगा हम लोगों का।
final state can be any subset of the set of states, subset of the set of states including empty set. तो फाइनल सेट क्या होगा? सेट ऑफ कैन बी सबसेट ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स. ओके, दैट इज पावर सेट ऑफ एन विथ एन स्टेट्स. देखिए एम्प्टी सेट को भी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि एफ ए विदाउट कुछ एफ ए में फाइनल स्टेट नहीं रहता है. ठीक है, क्योंकि वो सेट है. वो भी देखेंगे हम लोग, आज ही हम लोग देखेंगे जिसमें स्टेट्स फाइनल स्टेट नहीं रहता है. विथ इन स्टेट्स we can have 2 to the power n possible subset. Hence for n states and m input alphabet we can have the. मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ कि now I am saying that you can have only one state as the, I am now restricted that you consider only Q0, Q1 as initial state. Now Q1 तो गेट में कुछ एग्जाम में वो रेस्ट्रिक्ट कर देते कि अब Q1 या Q2 या एक ही है. Now Q1 is initial state. Same question. ठीक है, अब now Q1 is the initial state. Then how many DFA we can get? बताइए कितना DFA मिलेगा अगर सिर्फ Q1 is the initial state? बताइए कितना स्टेट्स मिलेगा अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि आप इनिशियल स्टेट सिर्फ Q1 को ही कंसिडर कर सकते हैं और किसी स्टेट को नहीं कर सकते हैं, तो कितने DFA मिलेंगे आपको? अब मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को. Now you can consider only Q1 as the initial state and no other state you can consider as the initial state. Then how many state? अब इनिशियल स्टेट का पॉसिबिलिटी कितने कॉम्बिनेशन का? एक ही होगा ना इनिशियल स्टेट. अब एक हो गया, n नहीं होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा. डेल्टा तो हमारा 2 to the power nm है और 2 to the power n. So now we will get this many number of n to the power nm 2n number of DFAs. जब हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे सिर्फ Q1 को आप इनिशियल स्टेट कंसिडर कीजिए तो हमारे पास तो इनिशियल स्टेट का एक ही ऑप्शन हो गया 1, लेकिन डेल्टास का तो हमारे पास n to the power n ही है, फाइनल स्टेट का 2 to the power n है, तो टोटल अब हमारे स्टेट्स कितने हो गए? ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉसिबल NFAs कितने हो सकते हैं? ये सेम लॉजिक लगाएंगे तो कर लेंगे. n states and m input alphabet with n states and m input alphabet. Now how many NFA you can get? And again here you consider Q1 as इनिशियल स्टेट. मैं आसान कर दे रहा हूँ, अब Q1 को ही इनिशियल स्टेट कंसिडर कीजिए. कंसिडर Q1 एज इनिशियल स्टेट. देखिए पहला क्वेश्चन आप समझे होंगे तो इसे भी कर पाएंगे, इसलिए मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप देखा कीजिए. आपको हमने बताया है कि आप NFA या DFA बनाएंगे तो NFA जो बनेगा किसी भी स्टेट में NFA रहेगा तो उसमें क्या 3 चीज़ें से ही बनेगा. एक इनिशियल स्टेट से, देखिए सेम उसी तरह हम ले रहे हैं. एक इनिशियल स्टेट रहेगा, दूसरा डेल्टा रहेगा ट्रांजिशन फंक्शन,
और तीसरा क्या रहेगा, ट्रांजिशन फंक्शन, और तीसरा क्या रहेगा, फाइनल स्टेट। हमेशा स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो गलतियां नहीं होगी। अभी ये सब पहली बार कर रहे हैं इसलिए शायद हो रहा होगा, बाद में नहीं होगा। प्रैक्टिस थोड़ा कीजिएगा घर पे आप लोग। तो देखिए इनिशियल स्टेट आपको बोल रहा है यहाँ पे कि आप Q1 को ही कंसिडर कर सकते हैं इनिशियल स्टेट। तो आपको कितना पॉसिबिलिटीज है इनिशियल स्टेट कंसिडर करने का, एक ही है, क्योंकि आप सिर्फ Q1 को ही कर सकते हैं। अब ट्रांजिशन फंक्शन आप कितने प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ देखिए आप स्टेट्स लिखेंगे, सेम उसी तरह लिखिए, Q1 से Q2 रहेगा, फिर Q3 रहेगा, Qn के तक जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इनपुट अल्फाबेट 1 2 3 टिल m लिखेंगे। अब देखिए Q1 को जब 1 मिला, ये NFA है। NFA क्या बोलता है कि कोई एक स्टेट को एक इनपुट अल्फाबेट मिला तो एक से ज्यादा स्टेट पे जा सकता है। उसका डेल्टा क्या रहता है, Q क्रॉस सिग्मा गोज टू 2 टू द पावर Q, 2 टू द पावर Q। ओके, तो जितना स्टेट्स है उसका 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस है, वो कितने स्टेट्स पे, मतलब कितने पॉसिबिलिटीज है, दैट इज पावर सेट ऑफ n। तो 2 टू द पावर n पॉसिबिलिटीज है उसके पास जाने का। वो किसी एक स्टेट को एक इनपुट अल्फाबेट मिलने से वो इतने पॉसिबिलिटीज है उसके पास, किसी इसी 2 टू द पावर n में से किसी एक के पास वो जाएगा। इम्टी और ये लास्ट डे हम लोग देखे थे कि इम्टी सेट पे भी जाता था, एक सेट के जैसे ए था, बी था, और Q1 Q0 Q1 था। याद आ रहा है आप लोगों को, ये समझ में आया क्यों 2 टू द पावर n हो रहा है यहाँ पे। देखिए मैं उसी तरह क्वेश्चन इसीलिए लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। या सो आपको अब कितने ट्रांजिशन फंक्शन के पॉसिबिलिटीज हो गए, टोटल एलिमेंट है यहाँ आपके nm, टोटल एलिमेंट आपके कितने हो गए nm, nm 1 से शुरू हुआ, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, टोटल हमारे पास nm एलिमेंट है। और हर पोजीशन में हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। अब हम 2 टू द पावर n को सारे पॉसिबिलिटीज लेंगे, इन 2 टू द पावर n, इन 2 टू द पावर n, इंटू अप टू nm टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n अप n अप टू पावर nm, क्योंकि इतने टाइम्स हो रहा है ना। जब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 करते हैं तो टोटल 4 होता है। हम कितने टाइम्स कर रहे हैं, nm टाइम्स, तो टोटल n टू द पावर nm हो जाएगा, दैट इज 2 n स्क्वायर m हो जाएगा, 2 n स्क्वायर m हो जाएगा। सो इनिशियल स्टेट आपको मिला 1, इनिशियल स्टेट आपको मिला 1, टोटल 2 टू द पावर n स्क्वायर क्या था, n स्क्वायर m आपको ट्रांजिशन फंक्शन मिला पॉसिबिलिटीज। और फाइनल स्टेट क्या होगा, 2 टू द पावर n सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n। तो आपको टोटल कितने मिल गए नंबर ऑफ स्टेट्स, सॉरी नंबर ऑफ NFS, हाउ मेनी नंबर ऑफ NFS यू कैन फॉर्म विथ n इनपुट एंड m अल्फाबेट इज दिस। देखिए मैं बोला कि आप कितने DFS बना सकते हैं अगर आपके पास n स्टेट्स है। और देख लीजिए सबको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। और m अल्फाबेट है, इनपुट्स है, ठीक है, m इनपुट अल्फाबेट है। सो DFS जो आपको बनाते हैं, तो DFS बनाने का पॉसिबिलिटीज क्या है कि उसमें DFA में क्या क्या रहेगा, एक इनिशियल स्टेट रहेगा कोई एक। तो आपके पास जब n स्टेट है तो n स्टेट में कोई भी किसी भी एक को आप इनिशियल स्टेट कंसिडर कर सकते हैं, या Q1 को, Q2 को, Q3 को। तो आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस है जिसमें आप कर सकते हैं इनिशियल स्टेट कंसिडर। तो यू आर हैविंग n ऑप्शंस, n ऑप्शंस है उसमें से किसी एक को भी कंसिडर। तो अब टोटल इतने आप इनिशियल स्टेट कंसिडर कर सकते। नाउ अब फाइनल स्टेट आप कितने कंसिडर कर सकते हैं, 2 टू द पावर n, बिकॉज फाइनल स्टेट क्या है, टोटल सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, बिकॉज वो क्या हो गया, एक सेट है।
अगर n स्टेट है हमारे पास, तो यू कैन हैव हाउ मेनी सेट, it is going to be set of all subset of n, that is power set of n is going to 2 to the power n. ये हो गया। फिर आपका डेल्टा, डेल्टा क्या बता रहे कि एक स्टेट को एक इनपुट मिलेगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है। अब जानते हैं कि ये एक DFA है, तो एक स्टेट को एक इनपुट अल्फाबेट मिलेगा तो किसी एक ही स्टेट पे जाएगा, उसके बाद n ऑप्शन है, क्योंकि डेल्टा हमारा क्या बोलता है, q क्रॉस सिग्मा गोज टू q इन केस ऑफ DFA में बोलता है एक स्टेट को एक इनपुट अल्फाबेट मिलेगा तो एक ही स्टेट पे जाएगा। वो जो एक ही स्टेट है, हमारे पास तो ऐसे n स्टेट है ना, 1 2 करके n, तो इसमें से किसी एक पे जाएगा। तो कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास किसी एक पे जाने के लिए, n ऑप्शंस है। हर स्टेट को एक इनपुट मिलने से n ऑप्शंस है। और टोटल ऐसे कितने जगह जाएगा, वो कितने स्पेसेस है टोटल इसमें, यहाँ n एलिमेंट है, यहाँ m है, तो n इंटू m हो गया हमारा, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं। तो इसमें अब n ऑप्शन सब है अप टू nm टाइम्स है, तो टोटल क्या हो गया, n टू द पावर nm। ठीक है, तो अब हम टोटल डेल्टास कितने ले सकते हैं, बन सकता है n टू द पावर nm। ठीक है, अब क्या हमें DFA बनाना है, तो हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लेना है ना। इतना इनिशियल स्टेट हो सकता है, ये इतने पॉसिबिलिटीज है फाइनल स्टेट का, इसके साथ हम सारे, जैसे हम ए जब इनिशियल जब फर्स्ट इनपुट ए होता था तो सेकेंड इनपुट ए भी दोनों हो सकता था, सारा कॉम्बिनेशन लेते थे ना इस तरह। तो जब कोई भी एक इसमें से इनिशियल स्टेट होगा तो उसमें से कोई भी एक इसमें से फाइनल स्टेट होगा, तो सारा कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके। ये हुआ। देखिए चीजों को समझना है हमें। इसी तरह हमने क्या किया, NFA का भी किए। NFA में क्या हो गया, सिर्फ चेंज इसमें हो गया, क्यों, क्योंकि डेल्टा में ही चेंज होगा, डेल्टा में ही चेंज होगा। डेल्टा का हमारा ऑप्शन हुआ क्या होगा, 2 टू द पावर n, और टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, nm। वहां किसी एक n स्टेट में जा सकता है, यहाँ पे 2 टू द पावर n में से किसी एक में जा सकता है, क्योंकि NFA में डेल्टा है q क्रॉस सिग्मा गोज टू 2 टू द पावर q। ठीक है।